Okay, so let's start our next topic. This is graphs. So we have to draw the graph of the linear equation in two variable. So you are already aware linear equation in two variable will give us a straight line graph. Now this graph can be vertical, this graph can be horizontal, this can be slanting, any type of graph it can form. It will always be a straight line. So let's start with the simple equation x plus y is equal to 3. If you take any 2 points, then you can form a straight line. So I would recommend take 3 points. So in class 9th, actually you should take 3 points, because if you made any mistake, then you can realize if you are having 3 points, otherwise for 2 points, वो तो हमेशा straight line बनाएगी. तो अभी हम start कर रहे हैं. यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? Generally, the thing that I always prefer, take x as 0 and then find the value of y, take y as 0, then find the value of x. In that case, those 2 points will fall on the coordinate axis and it would be easier to find the point and join to get a straight line. Okay, चलिए अब यहाँ पे हम लोग एक ना ब्लॉक बना लेते हैं. इस वाले ब्लॉक में हम लोग x और y की वैल्यूज कॉरस्पॉन्डिंग पुट करते जाएंगे. इतने बड़े ब्लॉक की वजह से आपको जरूरत तो पड़ेगी नहीं, बट स्टिल x and y, so we have to take 3 values minimum. अगर आप 4 लेंगे तो ठीक है, it's okay, but 3 is actually enough. So x and y. When I take x as 0, in this case, can you guess what is y? So let's put this in the given equation, first equation. So when I put x is equal to 0, then yes, very good, y is equal to 3. Okay, so the first point that we get, x is equal to 0 and corresponding point for y is 3. So let's put x 0 and y 3, and you can write it in the ordered pair 0 comma 3. You will not change the points because the first point is for x coordinate, that is known as abscissa, and the second point is for y coordinate, that is known as ordinate. Okay, so let's take the another one. As I told you, firstly take x0, then take y0. This will give us two different points on the axis. So in this case, x will remain as it is and we will put y is equal to 0. Now sum of these two is 3 from the first equation, and you can see x is equal to 3. So these 2 points are comparatively easier to find, but आगे आगे लॉजिक आपको समझ में आने लगेगा. तो अभी मैंने क्या किया था, y को 0 लिया था, corresponding point for x is 3. Now come on to the one more point. So that point, let's take x is equal to 1. You can take any point, like you can take x minus 1, you can take x2, you can take y1, your choice. So if I put x is equal to 1 in the first equation, which is x plus y is equal to 3, x की प्लेस पे आप क्या पुट कर रहे हो 1, और y को एज इट इज रहने दो, दिस इज इक्वल टू 3. नाउ व्हाट विल यू गेट, y इज इक्वल टू 1 जो है वो राइट साइड पे जाके सबट्रैक्ट हो जाएगा. सो 3 minus 1 इट इज 2. सो वी गॉट y इज इक्वल टू 2. The ordered pair is 1 comma 2, means x की value 1, abscissa 1, then ordinate 2. So I got 3 points that we have to plot on the graph. So these solution is actually you have to show. You can take short step just in case if you are comfortable with the points. तो यहाँ पे अब देखिए हम लोग क्या करेंगे. फर्स्ट पॉइंट हमारा कौन सा है, when x is 0 y is 3. So this is the point when x is 0 y is 3. Okay, next point 3 पे 0. So x की value 3 होनी चाहिए. So this is the point. This is the point where x is 3 and y is equal to 0. So the 2 points where if abscissa is 0, that point lie on the y-axis. If ordinate is 0, that will lie on the x-axis. तो इससे आपको थोड़ा सा आइडिया भी लग जाएगा कि हाँ हम लोग ठीक जा रहे हैं. अब नेक्स्ट हमारा है 1,2. So basically x1 के लिए y will be 2. x1 y2. So this is the third point that we have taken 1,2. Okay, now these 3 points you can clearly see these 3 points lie on a straight line. So 3 points are recommended because if you made any mistake, then you will realize while plotting the graph. अगर आपने कोई गलती की होगी तो वो तीनों कोलिनियर पॉइंट नहीं होंगे, एक पॉइंट कहीं और चला जाएगा. Then you will actually be able to solve your problem. अगर आपने 2 ही पॉइंट लिए तो 2 पॉइंट तो हमेशा स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, और उस केस में आपको पता ही नहीं चलेगा आपने गलती की या नहीं की. ओके, तो अब हम क्या करेंगे, इन तीनों पॉइंट्स को हम लोगों को ज्वाइन करना है. इन तीनों पॉइंट्स को हम लोगों को ज्वाइन करना है. ध्यान रखना, ज्वाइन करते हुए आई वुड रिकमेंड यूज अ स्केल. ठीक है, अगर आप एक स्केल से ज्वाइन करेंगे तो आप कोई गलती नहीं करेंगे, और फ्री हैंड भी कर सकते हो, बट प्लीज मेक श्योर कोई एरर नहीं होना चाहिए. तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू join these 3 points like this.
ठीक है, तो these 3 points will fall on this straight line, and you can write the equation like this. Graph is of equation x plus y is equal to 3. So I hope most of you got the concept. So what we have done, we were given with an equation, linear equation in two variables. So we choose one point for x, like I choose 0, and corresponding y came as 3. So 0, 3 is the first point. In the second, I took y 0, then x came 3, then 3, 0 is the second pair, and the third one is when I took x is equal to 1, I got y is equal to 2. So x1 के लिए y2 हमने ये तीनों पॉइंट ग्राफ पे प्लॉट की, and thus showing the straight line. So yes, this is the graph for x plus y is equal to 3. Now you can use this concept while plotting the graph. So let's practice some more. So the next that we are having the equation, this is x minus 2y is equal to 4. x minus 2y is equal to 4. अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो x minus 2y is equal to 4 जो है, इसमें आप x को 0 y को 0 लोगे और फिर आप अपना स्टार्ट करोगे। और ऐसे वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए generally I recommend what you can do, you can take the one variable on the right side and you can have one variable on the left side. In that case, it would be much easier to find the values. So in this particular equation, I can take x0 and y0 and then find the two solution. After that, we can try for the third one. Okay, तो चलिए हम यहाँ पे अभी क्या कर रहे हैं, एक ब्लॉक बना रहे हैं। ब्लॉक बनाने से हमें क्या फायदा होता है कि हम उसको ऑर्डर्ड पेयर को यहाँ लिखकर प्लॉट करते हुए मिस्टेक नहीं करेंगे। अगर आपने x और y को इंटरचेंज कर दिया तो यू विल एक्चुअली मेस अप। ओके, हाँ जी, तो ये मेरा x है, यहाँ पे हमारा y है। अब हमारी जो इक्वेशन है, आई विल चेंज दिस इक्वेशन आफ्टर चूजिंग 2 points, and if you want you can change it in the first step. So basically firstly let's take 2 points for the axis. तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, y को 0 ले लीजिए। ठीक है, अगर मैं y को 0 लूंगी तो मेरा बनेगा x माइनस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 4। क्या हो गया देखो, तो 0 into something will be 0. So this point is actually the point that you can think in your brain. आपको जरूरी नहीं है कॉपी पेन को यूज करना पड़ेगा। तो x minus 0 plus 0, it doesn't make any difference. So because 0 plus anything will be the same number. So x is equal to 4. Got it? So what I did, I took y0 and got x equal to 4. Now let's again choose the next point for the next, जैसे हमने y को 0 लिया था ना, अब हम क्या करेंगे, x को 0 लो, so that these 2 points will plot on the fall on the axis. अब मैं x को 0 ले रही हूँ, ध्यान से देखिए, अगर मैं x को 0 लेती हूँ तो 0 माइनस 2y इज इक्वल टू 4। क्लियर? अब यहाँ से 0 तो एडिशन सब्ट्रैक्शन में कोई रोल प्ले करेगा नहीं, तो मेरे पास है माइनस 2y इज इक्वल टू 4। अब एक चीज का ध्यान रखो, ये वाला जो स्टेप है 8th क्लास में कभी कभी थोड़ा सा बच्चों को कुछ कंफ्यूजन रह जाता है, तो वो लोग क्या करते हैं, -2 को राइट साइड पे +2 की तरह लाते हैं। बट प्लीज थिंक इट लाइक दिस, -2 is getting multiplied with y। अगर आप यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट्स लगा के इमेजिन करोगे, then -2 is a term which is getting multiplied with y. This is not -2 is adding to y. That's why -2 which is multiplied on the left side will get divided on the right side. Or one thing you can do, you can shift the negative sign, afterwards you can divide it with 2. So y is equal to 4 divided by -2. I hope this makes the clear. ओके, सो y इज इक्वल टू नेगेटिव जो होता है वो आपका ऊपर न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में हम लोग इंटरचेंज कर सकते हैं, बिकॉज 4 अपॉन -2 को अगर मैं -1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देती हूँ, आई गॉट -4/2। सो -4/2 और 4 अपॉन -2 वन एंड द सेम थिंग। सो 4/2 will be 2 and with negative sign. So the next point that I receive for x is equal to 2, I got y is equal to -2. तो कोई बच्चा मुझे ये बताएगा 0 -2 कौन से एक्सिस या कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? सोचो सोचो सोचो, x 0 है, x 0 का मतलब y एक्सिस। क्लियर? अगर आपका एब्सिसा 0 होता है तो y एक्सिस पर पॉइंट लाए करता है। अब यहाँ पे हम लोगों का जो ऑर्डर्ड पेयर बना, फर्स्ट वाले केस में 4,0 था और सेकंड वाले केस में 0 -2, तो आई गॉट 2 पॉइंट्स। एंड द थर्ड पॉइंट, for this third point, either you can move
नॉर्मली। और व्हाट आई सजेस्ट, अगर आप अपनी फर्स्ट इक्वेशन, जो ये इक्वेशन दी हुई है, इसको आप इंटरचेंज कर दो, लाइक x इज इक्वल टू 4 प्लस 2y। तो आप अपने पॉइंट्स यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते थे इंटरचेंज करने के बाद। अब यहाँ पे आप लोगों को एक चीज का ध्यान रखना है, कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, 2y को लेफ्ट में लेके x को मूव करते हैं। सो इफ यू हैव वन ऑफ द x और y वेरिएबल विद वन एज द कोएफिशिएंट, तो उसको हम लेफ्ट में रखेंगे। ठीक है, अगर मैं y को लेफ्ट में रखूंगी तो दैट इज -2y, सो यू विल हैव टू डिवाइड विद -2 एंड उससे आपका स्टेप इंक्रीज होगा, प्लस कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाएंगी। अब मैं यहाँ पे देखो इसको इस तरह से मूव कर सकती हूँ ना। अब यहाँ पे y को 0 मत रखना बेटा, y को 0 आप ऑलरेडी रख चुके हो। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, y को -1 लो। ठीक है, वैसे भी मुझे ऐसा पॉइंट चूज करना है मेरी छुटकू सी ग्राफ में आ जाए, तो y को मैंने -1 चूज किया। तो अब देखो y की प्लेस पे -1 रखो। Whenever there is a negative sign, I would recommend to make use of brackets. अगर आप ब्रैकेट यूज नहीं करते हो तो काफी बार आप मल्टीप्लिकेशन को प्लस और माइनस से एक्चुअली गड़बड़ कर देते हो। तो दिस इज 4 2 into -1 will be -2 and we got x is equal to 2. So the third ordered pair is abscissa 2 and the corresponding y is -1. तो देखिए y की प्लेस पे हम -1 ले लेते हैं और x की प्लेस पे हमारे पास 2 आ जाएगा। Okay, so we got three ordered pair of abscissa ordinate which justify this equation x minus 2y is equal to 4. Let's plot these points in x की 4 y 0, x की value 4 y 0, so it is ordinate 0 है ना, so it will be on the x axis 4, 0. सबसे पहले आप एक्सेस के पॉइंट्स प्लॉट जो कर रहे हो वो सीधा स्ट्रेट लाइन देने में केपेबल है। अब देखो 0 -2, तो इसका मतलब x तो 0 रहेगा 0 और y जो है -2 तक जाएगा, तो दिस इज -2। ओके, तो देखो 0 -2, तो आपका जो पॉइंट था वो एब्सिसा 0 था, तो पॉइंट बेसिकली लाइज ऑन y एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस। The third point is 2 -1. Will you let me know the quadrant in which it will fall? Yes, बच्चा, it will fall in the fourth quadrant. So 2 के against -1, 2 x की वैल्यू देखो 2, यहाँ से देखो हमने 1 2 यूनिट पहुंचे x पे और यहाँ से y का 1 यूनिट, तो 2 और -1 का जो क्रॉस सेक्शन है दिस इज दिस पॉइंट, so this is 2 -1. Okay, so we got a 3 point on the graph, and if we join these 3 points we will get a straight line. If we join these 3 points we will get a straight line. ठीक है, तो अब आप लोग जल्दी से ग्राफ जो आपने मेरे साथ साथ बनाया है इस वाले ग्राफ को स्ट्रेट लाइन की हेल्प से ज्वाइन कर लीजिए। मुझे स्टाइलस से काम करना है तो इसलिए मुझे थोड़ा सा फ्रैक्शन ऑफ सेकंड ज्यादा लग रहा है ज्वाइन करने में, ताकि मेरी जो स्ट्रेट लाइन है आप लोगों को स्ट्रेट लाइन एक्चुअली बताई है। Okay, so this is our straight line. This is the straight line. ठीक है बच्चों, तो आप लोगों के पास स्केल है, पेंसिल है, अच्छे से जस्ट इन केस इफ यू मेक एनी एरर देन प्लीज रब दैट पॉइंट एंड ड्रॉ दैट अगेन। तो देयर शुडंट, ज्योमेट्री जो होता है वो बिल्कुल बिल्कुल नीट वर्क होना चाहिए। ज्योमेट्री में आपको नीटनेस के भी मार्क्स मिलते हैं। अगर आपका काम नीट नहीं होगा तो डेफिनेटली यू विल लूज योर मार्क्स। ठीक, तो चलिए ये हमारा सेकंड स्ट्रेट लाइन बना है। अब जो हमारा ये स्ट्रेट लाइन है ये किस ग्राफ का है, तो हम यहाँ पे इक्वेशन लिख देते हैं x -2y इज इक्वल टू 4। तो अभी जो मैंने आपको यहाँ पे लास्ट स्टेप में मतलब थर्ड पॉइंट निकालने के लिए जो शिफ्टिंग सिखाया था, अब जो हम नेक्स्ट स्टेप ग्राफ लेंगे, लेट्स सी कितने बच्चों को वो शिफ्टिंग वाला कंसेप्ट क्लियर हुआ है। अगर आप शिफ्टिंग अच्छे से करोगे देन आई एम प्रिटी मच श्योर यू विल फाइंड द करेक्ट पॉइंट्स। समटाइम्स यू नो बच्चे क्या करते हैं, वो जिस तरह से शिफ्टिंग करते हैं चीजों की, जो पॉइंट्स उनको मिलते हैं वो वाले पॉइंट्स एक्चुअली डेसिमल्स दे देते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल फॉर्म दे देते हैं, और दोज पॉइंट्स आर एक्चुअली डिफिकल्ट टू प्लॉट। और अगर आप पॉइंट ठीक से प्लॉट नहीं करोगे तो आपका लाइन स्ट्रेट नहीं आएगा एंड यू विल एक्चुअली मेस विद द क्वेश्चन। जनरली ग्राफ प्लॉटिंग कम्स इन 3 और 4 मार्कर। अगर आपको सिर्फ पॉइंट्स निकालने को बोले जाएंगे तो दैट कैन बी इन 2 मार्कर एज वेल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी इसको ऐसा लग रहा है कि हमारे सारे बच्चे ग्राफ बनाने में तो एक्सेल कर चुके हैं, तो अब उनको हम एक स्टेप अप लेके जाते हैं। ग्राफ बनाने में एक्सेल कर चुके हो इसीलिए अब आपको ग्राफ जो है एक छोटा सा हल्का सा स्टेप अप ट्विस्ट दिया है और उसके बाद कुछ एक क्वेश्चन और ऐड ऑन कर दिया है। ऑल्सो फाइंड द पॉइंट्स वेयर this line graph of this line will intersect the two axes.
क्लियर? तो अभी देखो हमने जो ग्राफ्स बनाए थे, दोनों ग्राफ में मैंने आपको पर्टिकुलरली स्पेशली बोला था ना, क्या बोला था, आपको ऐसे पॉइंट चूज करने चाहिए जहां पे आपका ग्राफ एक्सिस को सीधा पॉइंट प्लॉट करे। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, एक छोटा सा टेबल बना लेते हैं। अब तो आप कंफर्टेबल हो गए होगे टेबल बनाने में। आपको यहाँ पे टोटल बेसिकली एक्स वाई की वैल्यूज पुट करने के लिए कॉलम्स चाहिए। ठीक, अब हम क्या करेंगे, हमारा जो ग्राफ है, इस वाले ग्राफ में इसको राइट साइड और लेफ्ट साइड को मैं इंटरचेंज करके ऐसे लिख सकती हूँ, 5x is equal to 3y plus 5. Okay, x is 5x is equal to 3x plus y. So I just didn't do anything. Simply left side और right side को interchange कर दिया, that I can do. तो यहाँ पे आप लोगों का फर्स्ट जो पॉइंट हम चूज करेंगे, y को 0 ले लीजिए। ठीक, अभी क्या आप ये 5 को अगर डिवाइड करना चाहो तो आप पहले वाले स्टेप पे डिवाइड कर सकते हो, अदरवाइज जो आपको फाइनल आंसर आएगा वहां पर भी डिवाइड कर सकते हो। तो इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस। जो बच्चे थोड़ा ज्यादा शार्प है मैथ्स की मेंटल कैलकुलेशन में, वो लोग बाद में भी डिवाइड कर सकते हैं, और जिन बच्चों को अगर थोड़ा सा भी फियर है कि कहीं मैं कोई मिस्टेक ना कर दूं, तो इन दैट केस यू कैन टेक 5 इन द डिनोमिनेटर ऑन द सेकंड स्टेप। चलिए, तो y को अब मैं 0 दूंगी तो 5x मेरे पास क्या आ जाएगा, 3 into 0 plus 5, तो 0 into 3 will be 0 only, and 5x will give you 5, and x is equal to 5 by 5, तो क्या हो गया 1। तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1। तो हम लोगों ने y को 0 लिया, कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ x हमारे पास 1 आ गई। ठीक है ना, y को 0 लिया, कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ x हमारे पास 1 आ गई। अब सेकेंड पॉइंट, अगर मैं x को 0 लेती हूँ, तो अगर मैं x को 0 लेती हूँ तो आप लोगों का ये वाला पॉइंट वैसे मैं निकाल रही हूँ, बट आई विल अवॉइड टू प्लॉट दिस पॉइंट। अभी मैं आपको बताती हूँ क्यों। देखो, अब हम क्या कर रहे हैं, x को 0 ले रहे हैं। अगर मैं x को 0 लेती हूँ तो 5 इंटू 0 इज इक्वल टू 3y प्लस 5। तो ये 0 इंटू समथिंग विल बी 0। ये जो प्लस 5 आपको राइट साइड में दिख रहा है, ये शिफ्ट होके -5 बन जाएगा लेफ्ट में। तो -5 इज इक्वल टू 3y, और y की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, -5/3। तो जिस भी नंबर के डिनोमिनेटर में 2 और 5 के अलावा और कोई भी फैक्टर होता है, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल देता है, एंड वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस इन चैप्टर 1 एज वेल। तो अब ये वाला जो पॉइंट है, दैट इज लाइक अगर आप इसको 3 से डिवाइड करोगे तो 3 1 3, 2 रिमाइंडर 20, 3 6 18, तो 1 -1.666 ऐसे जाएगा। अब आप कैसे प्लॉट करोगे इस पॉइंट को, ठीक है ना? तो इसीलिए ये वाला पॉइंट हम प्लॉट नहीं करेंगे, बट जब हम लाइन बनाएंगे तो दैट पॉइंट विल कम ऑटोमेटिकली। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग क्या करोगे, देखो आप या तो डेसिमल वाली वैल्यूज भी यहाँ पे ले सकते हैं हम। अगर मैं y को 1 लेती हूँ तो मेरे पास जो आंसर आएगा दैट विल बी इन द डेसिमल फॉर्म। ठीक, तो y को अब मैंने 1 लिया, अगर मैंने y को 1 लिया तो 5x इज इक्वल टू 3 इंटू 1 प्लस 5। ठीक है, अब 3 1 3, 3 प्लस 5 8। तो 5x अगर 8 के बराबर है तो x विल बी 8/5। अब आप लोग बोलोगे यहाँ पे भी तो डिनोमिनेटर आ रहा है, बट यहाँ पे डिनोमिनेटर में 5 है। रिमेंबर, इफ देयर इज 2 and 5 then that can terminate, but if there is other integer than 2 and 4 or power of 2 and 4, then it will not terminate. तो अब यहाँ पे देखो, इसमें आप इसको जब डिवाइड करोगे तो 5 1 5, रिमाइंडर कितना आ रहा है आपका 3 30, 5 6 30। तो 1.6 इज एक्चुअली प्लॉटेबल। आप लोगों का जो ग्राफ होता है उसमें वैसे भी 0 से 1 जो आपका यूनिट होता है, उसके अंदर 10 लाइंस होती हैं। जो फिफ्थ लाइन 0.5 को शो करता है, दैट इज कंपैरेटिवली अ बिट थिक, सो यू कैन एक्चुअली फाइंड। नाउ अब एक तरीका और है इस क्वेश्चन को करने का, जैसे यहाँ पे अगर आपको लगता है आपको डेसिमल बिल्कुल अवॉइड करना है, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास 5 जो है वो x का कोएफिशिएंट है। तो मैं यहाँ पे अगर y को y को इन पावर ऑफ 5 लूंगी तो उस केस में मेरा 5 कैंसिल हो जाएगा। सो मे आई शो यू हाउ। तो देखिए यहाँ पे ये वाला पॉइंट तो मैं प्लॉट करने में इंटरेस्टेड हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ 1 y के लिए 1.6 x। ठीक है, तो ये पॉइंट मैं इंटरेस्टेड हूँ, दैट्स व्हाई आई राइट इट हियर ओनली। अब नेक्स्ट जो मैं आपको बोल रही हूँ कि अगर मैं यहाँ पे y को पावर y को पावर ऑफ 5 में ले लेती हूँ तो इट वुड बी मच मच इजियर फॉर मी टू प्लॉट दैट पॉइंट। तो देखिए हम क्या कर रहे हैं, y को 5 ले रहे हैं। अब अगर मैं y को 5 लूंगी तो क्या हो जाएगा, y को 5 लेने से 5x इज इक्वल टू 3 इंटू 5 प्लस 5। ओके, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कंफर्टेबल है, तो वो लोग आराम से इस
दोनों तरफ LHS RHS में, जैसे LHS में आप 5 रख रहे हो, RHS में 5 कॉमन आ रहा है, दैट विल कैंसिल, बट इफ यू आर नॉट दैट मच कंफर्टेबल you can solve it. So 5 threes are 15 plus 4 19. Sorry, 5 threes are 15 plus 5 20 और 20 divided by 5. ठीक है ना, तो x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 4. Got it? So this is the way to find the integral value for the x and y so that it would be easier to plot. अब इसी तरह से अगर एक पॉइंट और मैं आपको डिस्कस करूं, जस्ट इन केस अगर मैं y को यहाँ पे 10 ले लेती हूँ, मैं आपको जस्ट ये शो करना चाह रही हूँ, अगर हम y को इंटीग्रल वैल्यू देंगे इन मल्टीपल ऑफ 5, दैट विल गिव अस द इंटीग्रल वैल्यू टू x ओनली. अब यहाँ पे आप चाहो तो -10 भी ले सकते हो, ठीक है ना, आपकी चॉइस है, जो भी आपको कंफर्टेबल होगा आप ले लीजिएगा. तो अगर मैं y को -10 ले लेती हूँ, चलो y को मैं -10 लूंगी तो 5x जो होगा, यहाँ पे आप लोगों के डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस बन रहे हैं वैल्यूज फाइंड करने के, है ना, तो ये मिक्स मत करना. जस्ट इन केस यू हैव एनी डाउट यू कैन जस्ट गो थ्रू अगेन. तो अब देखो x की वैल्यू मैंने निकालनी है, y की वैल्यू मेरे पास -10 है, तो 3 इंटू -10, देखो आई मेक यूज ऑफ ब्रैकेट सो दैट आई विल नॉट मेक एनी मिस्टेक. अब 3 इंटू 10 -10 तो -30, -30 प्लस 5 कितना होता है -25, और 5x अगर -25 के बराबर है तो x की वैल्यू -25/5, तो x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी -5. तो देखो ये वाला पॉइंट भी आपका कंपैरेटिवली काफी अच्छा पॉइंट है दैट यू कैन प्लॉट. सो -10 के अगेंस्ट हमारी वैल्यू आ रही है -5. तो अब देखो मैंने यहाँ पे आपको 5 वैल्यूज निकाल के दिखाई है, जिनमें से एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग था इसलिए मैं अवॉइड कर रही थी, एक यहाँ पे डेसिमल फॉर्म है. आई लाइक आई वुड रिकमेंड आप ये वाला पॉइंट ले सकते हो, बट जस्ट इन केस इफ यू आर कंफर्टेबल देन ओनली. अगर आपको लगता है नहीं मैं कहीं कोई एरर ना कर दूं तो यू कैन थिंक ऑफ, बिकॉज देयर इज अ मल्टीपल ऑफ 5, if in y then y 5 can get cancelled. अब चलिए पॉइंट्स प्लॉट करें हम. 1 माइनस 1 पे 0, x की वैल्यू 1 और y 0, x की वैल्यू 1 y 0 कहाँ पे आना है एब्सिसा 1 0. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, ये वाला पॉइंट अभी के लिए मैं अवॉइड करती हूँ, बट आई विल शो यू दैट दिस विल इन द ग्राफ ओनली. जो हम स्ट्रेट लाइन बनाएंगे ना वहीं पे आ जाएगा. 4 एंड 5, x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू चलते जाओ ऊपर 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 यहाँ पे. This is the point where x is 4 and y is 5. So whatever the point that we are finding, it would be written here. Then the third point that we are going to consider, -5 is x and against -10. -5 and -10. This one. देखिए -5 and -10. So the point that we got is -5 and -10. अब सीसा ऑर्डिनेट ऑर्डर पेयर. इसमें आप लोग प्लीज कुछ गलती ना. अब हमें ये देखिए, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये स्ट्रेट लाइन बन रही है ना, ज्वाइन करने से पहले भी आपको दिख रहा है ना स्ट्रेट लाइन. अगर ये स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही तो इसका मतलब आपने कुछ एरर की है. और अब यहाँ पे अगर आप ये जो हमने 2 पॉइंट्स और निकाले हैं जिनको हमने प्लॉट नहीं किया है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप अपने ग्राफ पे उन वाले पॉइंट्स को प्लॉट कर पाओगे, ठीक है ना, आप अपने ग्राफ पे उन वाले पॉइंट्स को एक्चुअली प्लॉट कर पाओगे. तो अभी हम क्या कर रहे हैं, इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहे हैं. तो लेट्स सी कितने बच्चे मुझसे पहले ज्वाइन कर पाते हैं. बहुत सारे बच्चे मुझसे पहले ज्वाइन कर पाएंगे, डोंट वरी. तो हम यहाँ क्या करते हैं, पहले इन दोनों पॉइंट्स को ऐसे ज्वाइन कर देते हैं. आप इसको स्केल से ज्वाइन करना, ठीक है, फ्री हैंड से ज्वाइन मत करना, फ्री हैंड से ज्वाइन करने में एरर होने के चांसेस रहते हैं. और अब ये वाला जो पॉइंट है, दिस पॉइंट विल सेटल विद दिस वन. आपको अपना ग्राफ एडवाइजेबली लेना होता है, आपको उतने ही एक्सेस पे पॉइंट्स चूज करने चाहिए जिनको आप यूज करने वाले हो, ठीक है. आपको जो यहाँ पे डिवीजन दिया है 1 2 3 4 10 और -10 तक जा रहा है, अगर आप 10 और -10 जैसे पॉइंट्स यूज नहीं करने वाले हो तो उस केस में डोंट एक्सटेंड द एक्सेस, उससे अननेसेसरी क्यूज होता है, ठीक है. अब देखो हमारा ग्राफ स्ट्रेट लाइन ग्राफ बना एंड वी विल राइट द इक्वेशन ऑफ द ग्राफ. दिस इज 5 + 3y and this is equal to 5x, ठीक है.
So it should be very neat. I'm telling you again and again. Linear equation into variable will give us a straight line, and it graphical work should be very neat if you want to get full marks. ठीक, अब यहाँ पे इसने बोला था कि हमें वो पॉइंट्स बताने हैं where the line intersects the two axes. ठीक है, तो इस वाले पॉइंट का आंसर क्या होगा? अब देखिए एक्स एक्सिस को ये जो लाइन है एक्स एक्सिस को कहाँ कट कर रही है, क्योंकि पॉइंट्स हमने ऑलरेडी निकाल दिए थे। तो एक्स एक्सिस को ये टच कर रही है 1,0 पे, और वाई एक्सिस को कहाँ टच कर रही है, ये देखिए वाई एक्सिस को टच कर रही है ये वाला पॉइंट जो है, और ये वाला पॉइंट हम लोगों ने ऑलरेडी निकाल के रखा था, दैट इज x0 के लिए दिस इज -5/3। तो पॉइंट निकालने के लिए फ्रैक्शन एंड डेसिमल कंप्लीटली फाइन, बट इफ यू हैव टू प्लॉट इन दैट केस ट्राई टू अवॉइड। अगर आप बहुत कंफर्टेबल है तो 1 डेसिमल इज क्वाइट गुड, बट नॉट मोर देन दैट। ओके बच्चा, चलिए नेक्स्ट ग्राफ पे देखिए क्या है हमारे पास। Set. We are having one more very interesting equation in which x is having some coefficient, y is also having some coefficient. Now you can tell me, like, in this equation we will transfer the terms so that it will become one variable on the one side and the other on the other side. That will help us to solve the equation. तो देखिए आपको यहाँ पे ये देखना है कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3x minus 4 is equal to 2y. Okay, and the other way, second तरीका इसको लिखने का क्या था, 3x को हम शिफ्ट कर देते तो 3x 4 minus 3x is equal to -2y. अब आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ना ऐसे इक्वेशन को कन्वर्ट करना है कि जैसे अब ये देखो x का कोएफिशिएंट 3 है, I want to avoid 3 in the denominator because 3 will not give me terminating decimal, but if it is 2 in the denominator then yes it will terminate after one place. So that's why I took the equation in a form such that 2y is equal to 3x minus 4. अब आप इस इक्वेशन में, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर आप चाहते हो कि 2 को आप डिनोमिनेटर में अभी से लिख दो, आपकी मर्जी। अगर आप नहीं लिखना चाहते तो यू कैन जस्ट डिवाइड द वैल्यू आफ्टर फाइंडिंग। तो लेट्स टेक x इज इक्वल टू 0 फर्स्ट। अभी बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं मैम प्लीज अब हर स्टेप मत करके दिखाना, अब हम थोड़ा सा ग्रोन अप किड्स हैं, अब हमें कंसेप्ट भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया, तो वी वांट टू गिव इट अ ट्राई बाय आवरसेल्फ। यस डियर, यू आर मोर देन वेलकम। मैं यहाँ पे टेबल तो बना सकती हूँ ना एटलीस्ट। चलो जी, अब x को मैंने 0 दिया, सोचो सोचो सोचो, x को मैंने 0 दिया। हाँ जी, many of you got the correct answer. 3 into 0 will make it 0 only. 0 minus 4 will be -4, and then this 2 will get divided on the right side. What I got, y is equal to -2. I got y is equal to -2. तो चलिए x0 के अगेंस्ट y की वैल्यू -2। अब वैसे तो मैं x को भी y, जैसे मैंने x को 0 लिया है, मैं y को भी 0 लेना चाहती हूँ, लेकिन अगर मैं y को 0 लूंगी तो व्हाट विल बी दी सॉल्यूशन, x क्या बन जाएगा। देखो अगर हम y को 0 ले रहे हैं, यहाँ पे अगर मैं 0 लूंगी तो ये टर्म 0 और ये 3 यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू 4/3। सो इट वुड बी डिफिकल्ट टू प्लॉट दिस पॉइंट। क्लियर है ना, तो आई एम जस्ट इग्नोरिंग दैट पॉइंट। ओके, फर्स्ट थिंग क्लियर हो गई। अब सेकंड, अब यहाँ पे हम काफी बार बच्चे क्या करते हैं, कभी x को वैल्यू देते हैं, कभी y को वैल्यू देते हैं, और उसमें फिर वो काफी मेसी काम करना स्टार्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना चाहिए, मैंने अपनी इक्वेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। अब यहाँ पे आपका x जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल का काम कर रहा है, y जो है डिपेंडेंट वेरिएबल का काम कर रहा है। तो अगर मैं x को y वैल्यूज देती जाऊंगी तो आई विल गेट द कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ y। तो देखिए 2y, अभी मैं क्या कर रही हूँ, x को 1। वैसे जो बच्चे स्मार्ट हैं, जिन बच्चों ने अभी जो पिछले वाला क्वेश्चन हमने किया था, अगर आपने ध्यान से वो क्वेश्चन मेरे साथ किया है तो सम ऑफ यू आर एक्चुअली थिंकिंग मैम ने यहाँ पे 2 का मल्टीपल क्यों नहीं लिया। हाँ जी, हमें वैसे 2 का मल्टीपल लेना चाहिए। ठीक है, अगर मैं 2 का मल्टीपल लूंगी आई विल गेट दी इंटीजर वैल्यू, इंटीग्रल वैल्यू, और अगर मैं यहाँ पे जैसे मैंने 1 लिया है तो इन दैट केस आई विल गेट दी डेसिमल थिंग। तो चलिए जी, 3 - 4 -1 होते हैं, और ये जो 2 यहाँ आके डिवाइड कर रहा है तो मेरा बन जाएगा -0.5। क्लियर है ना क्यों। तो नेक्स्ट, फर्स्ट ऑर्डर पेयर 0 पे -2 था, सेकंड ऑर्डर पेयर 1 पे x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू -0.5। तो अब ये वाली वैल्यू हम कंप्लीटली अवॉइड कर सकते थे। कैसे अवॉइड कर सकते थे, हम x को यहाँ पे इवन नंबर दे सकते थे कुछ भी। अगर मैं x को इवन नंबर देती तो देखो 2y इज इक्वल टू 3 इंटू 2 -4। तो देखो 3 2 6, 6 - 4 कितना होता है 2।
तो 2y जो है हमारा 2 के बराबर है, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 डिवाइडेड बाय 2, दिस इज 1, है ना। तो आपका दिस इज द वे टू फाइंड द होल नंबर। अब एक और वैल्यू फाइंड करना चाहेंगे, या कम ऑन टेक इट, x की वैल्यू आप -2 ले लीजिए, ठीक है। इफ यू वांट यू कैन टेक 4 एज वेल, तो 4 लेना है या -2 आपकी चॉइस है। तो ये मेरा हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 3 ब्रैकेट -2 -4। अब 3 इंटू -2 कितना होता है, -6, -6 -4 -10, तो -10 डिवाइडेड बाय 2, दिस इज -5। क्लियर, y की वैल्यू -5। तो यहाँ पे हमने एक और पॉइंट निकाला है, x की वैल्यू -2 के लिए y की वैल्यू मेरी -5 तक जा रही है। तो अब आपको ये चीज अच्छे से समझ में आनी चाहिए, हाउ कैन वी अवॉइड डेसिमल, हाउ कैन वी अवॉइड पर्टिकुलरली नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, क्योंकि उनको प्लॉट करना इज रियली चैलेंज। और उस केस में क्या होता है, लाइन थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी, फिर मार्क्स कटने के दार पे आ जाएंगे। तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -2, मैंने ठीक पॉइंट लिया है क्या, बताओ बताओ। नहीं, मैंने गलत पॉइंट लिया है, ये -2 के अगेंस्ट 0 है। क्लियर, ये -2 के अगेंस्ट 0 है, तो आपको इन चीजों का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। ये बहुत कॉमन एरर होता है। तो देखो x को 0, x 0 का मतलब y एक्सिस, और y की वैल्यू -2। काफी बार बच्चे ग्राफ ठीक से बना लाएंगे, सब कुछ कर देंगे, लेकिन ये जो मैंने अभी आपको दिखाया, ये वाला एरर होते ही अब नेक्स्ट मेरा पॉइंट कौन सा है, मैं डेसिमल वाला पॉइंट लिखना नहीं चाहती, इसीलिए तो मैंने एक और पॉइंट निकाला था, 2 पर 1, x की वैल्यू 2 पर y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1, एंड द थर्ड पॉइंट व्हिच वी कैन टेक -2 पे 5, x की वैल्यू -2 एंड y की वैल्यू -5, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, यस -5। तो x की वैल्यू -2 के लिए y की वैल्यू -5, ठीक है। तो देखो हमारा एक स्ट्रेट लाइन फील हो रहा है, यस वी गॉट द स्ट्रेट लाइन। तो देयर आर सम लॉजिक दैट कैन बी यूज्ड टू फाइंड द पॉइंट्स सो दैट इट कैन बी इजीली प्लॉटेड ऑन द ग्राफ। अब आपकी मर्जी है, अगर आप इसको ढंग से नहीं चूज करोगे पॉइंट्स को, तो काफी बार क्या होता है, आप इन्हीं पॉइंट्स में लेने में उलझे रहते हो। सो दिस इज माय स्ट्रेट लाइन एंड द ग्राफ